he will be joined. Let me start because Sarma's joined 8:03. This is really interesting. Okay, बच्चों, for today lecture we have most important lecture because I will tell you the graphical understanding of graph like y is equal to ax square plus bx plus c, which can be written in the form of like this one. I would say that x minus a whole square plus b, and let me give another number c as well, because I want to give you a general perception about this graph. So it's better to give you a complete understanding about these graph. Let me ask Sarmat. Where is Sarmat? Okay. So students, we are in graph paper. We are in GeoGebra software. So definitely there will be some graphing. Let me start a quadratic function like this one, 2x square plus 4x plus 6. This is our quadratic function. And what is the difference between quadratic function and a quadratic equation? Quadratic function actually a graphical understanding, a rule you already know about a function. Function is a rule between two variables. So x is independent variable and y is dependent variable. X known as domain and y known as range of the values. So these are now in the form of a function. Normally what we are doing, okay, y is equal to 0 is equal to 2x square plus k 4x plus 6. Actually, this is the form of a quadratic equation. But for now, I am interested that I'm not saying that the value of y is 0 right now. I'm saying that value of y may be any value. So I'm saying that, okay, Baba, it's y only. So my first step would be I will convert this form to this form, and I will tell you the benefit when we convert this form to this form. We have lots of benefit. We can discuss whenever we convert this form to this form. As I already discussed previous lecture, then we have number of things. We can find number of things in a graph of function. So let me give you example. For example, if I say that y is equal to yesterday, I didn't tell you that yesterday we solved the question or those questions which have x square coefficient is 1. Now, I will extend the level and I'm giving you any coefficient, not one, any coefficient. So our first step would be, let me common this 2 to make 2x square x square. That means we have to convert our क्वेश्चन. हमें अपने क्वेश्चन को लाजमी तौर पर इसको 1 बनाना होगा. तो हमें हमेशा कॉमन लेना होगा इसमें से जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ होगा. ओके, 2x स्क्वायर प्लस इट वुड बी 2x एंड लेट मी लीव दिस 6 एज वेल, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 के अंदर वर्किंग करनी है. 2 के अंदर एक्स स्क्वायर 2x और 6 को मैं ऐसे रखूंगा. मैं मेथड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है. ये मेथड जनरल मेथड कर रहा हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सके. ओके, 2 आपके पास है. अब जो हमने तरीका सीखा था भाई, मैंने a बनाया, a स्क्वायर. नाउ आई वुड हैव 2ab. ओके, नाउ देयर विल बी 2. आई नो द वैल्यू ऑफ a is x and I compare with this one. So value of v should be 1. ओके बच्चों, ये वैल्यू ऑफ v 1, ये बात समझ आ रही है? हेलो, वैल्यू Yes, ऑफ v sir. is 1. So that means 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर. बच्चों पर ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आप इस ब्रैकेट में सॉल्व कर रहे हो, इस ब्रैकेट में. और मैंने हाँ, b की 1 बेटा, क्योंकि जब कोई नंबर नहीं होगा तो फिर 1 ही होगा आपके पास, क्योंकि 2x पूरा आ गया था ना. तो फिर b की वैल्यू 1 ही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकती. इस्माइल ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जल्दी इस्माइल बेटा. यस सर. सर ओके उस ना, सेकंड जी स्टेप में जी. सर ब्रैकेट में स्क्वायर तो है नहीं, तो सर ये कैसे खुलेगा? किसमें स्क्वायर नहीं है? सर सेकंड लास्ट वाले स्टेप में.
हाँ स्क्वायर नहीं है तो आप क्या कहना चाह रहे हो, कैसे खुलेगा? आई विल टेल यू, डोंट वरी। नाउ लुक, y इज इक्वल टू 2, लेट मी कन्वर्ट, three terms in square form, which will be equal to x plus 1 whole square, and I just shifted this one. Let me solve this one. And there is -1, so let me write -1 here. Plus 6 is same. Okay, y is equal to 2. Now I multiply these two to these two terms. Okay, multiply with 2, it would be equal to x plus 1 whole square. Now multiply with 2, -1, it would be -2 plus 6. And finally simplify. You will see that the answer is x plus 1 whole square plus 4. आगा, स्माइल, दुआ, सरमत, यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। Yes, दुआ sir. स्माइल जल्दी, दुआ स्माइल, होपफुली। Yes, sir. बेटा अब देखो मैं क्या जादू करने लगा हूं। अब मैं आपको इसके बारे में बताते, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो तो फायदा क्या होता है। देखो इसको कन्वर्ट कर दो तो फायदा क्या होता है। नाउ मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इसका। ऑब्वियसली बच्चों मैंने, let me change the color, so for identification let me change the color. Okay, तो बच्चों मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया है, तो इसका मतलब ये और ये कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात है। मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, एक ही बात है, क्योंकि मैंने उसी को तो कन्वर्ट किया है। तो देखो मैं आपके सामने ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। y सर हमने इज को ये इक्वल, ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया, ब्रैकेट के 2 साथ तो सबसे मल्टीप्लाई किया? मल्टीप्लाई हो रहा है। नहीं, 2 को 6 के पास था ही नहीं ब्रैकेट, ब्रैकेट खाली अंदर था। देखो दुआ ऊपर से स्टेप देखते हुए आओ, ब्रैकेट था ही नहीं 6 तो के आज पास। नो सर 6 के पास नहीं सर, ये ब्रैकेट्स x प्लस 1 होल स्क्वायर के ऊपर जो है। हाँ नहीं, वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा दुआ, ऐसे ही रहेगा। खाली 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। यानी ये इसकी ओके सर। मल्टीप्लिकेशन इसी फॉर्म में होगी बच्चे। ओके, यस सर। let me okay, where is it? No, I need like this, x square. Okay, there will be x whole square. I just writing 2x square plus 4x plus 4x. Actually I want to analyze something, and they are really give me a tough time. Why are, let me plot this one. 2x whole square प्लस के 4x माइनस बल्कि प्लस 6. सो लुक पीपल, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। मेरे पास सिर्फ जो मेरे काम की चीज है वो मैं यहां लिख रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। y इज इक्वल टू, मैंने कन्वर्ट किया था 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4. सो बच्चों अब ये फॉर्म को कंपेयर करो, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये मैं हटा रहा हूं अब। और मैं आपको एक कंपैरिजन सिखा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। जब आप ग्राफिंग करोगे उसमें आपको ये कंपैरिजन बहुत काम का आएगा। यस, अब आप इस किस्म के ग्राफ प्लॉट करोगे और आपको वैल्यूज दी हुई होगी। ये मैंने अभी डायरेक्टली प्लॉट किया, पर मैं इसको प्लॉट करना भी सिखाऊंगा। डोंट वरी, मैं इसको प्लॉट करना भी आपको सिखाऊंगा। ये भी मेरे टास्क में से एक टास्क है, पर अभी फिलहाल मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूं आपको। बच्चों इस पॉइंट को नाम दिया जाता है वर्टेक्स, इसको नाम दिया जाता है वर्टेक्स, ठीक है। और इस पॉइंट को नाम दिया जाता है वाई इंटरसेप्ट। ये 6 था, सॉरी। अच्छा वो 6 दिया हुआ है, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, सॉरी, ये वाई इंटरसेप्ट नहीं होता, ये पॉइंट होता है वाई इंटरसेप्ट। खैर, इस पॉइंट को एक्चुअली नाम दिया जाता है, अगर मैं आपको बताऊं इसकी फॉर्म ये होती है बच्चों, ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। बेटा ये यहां पर माइनस फार्मूले का है, ये बी और सी, बी कोमा सी। ओके, सरमद इज देयर।
ये बी कॉमा सी बेसिकली वर्टेक्स का पॉइंट होता है। नोटिस करो इस वक्त अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो बी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को देखो जो ऊपर वाला मेरा पास है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, -(-1) होल स्क्वायर +4। तो नोटिस करो मेरी बी की वैल्यू अगर मैं इधर देखूं और इसको कंपेयर करूं, मेरी बी की वैल्यू -1 है और मेरी सी की वैल्यू क्या है, 4। और नोटिस करो ये -1 पे 4 प्लॉट हुआ है। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस यस सर। बेटा, ये एनालाइज करना बहुत जरूरी और ये सबसे मुश्किल टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करवाई नहीं जाती। तो मैं आपको ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, मतलब इस प्लॉट करने से पहले ही मैं आपके इसको खास खास चीजें आपको बता रहा हूँ इसकी। तो बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ये हमारे पास होता है इसका वाई इंटरसेप्ट। अब और कुछ और बातें भी सुन लो जो बहुत काम की, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी करके आ चुके हैं। बच्चों, एक लाइन आपके पास है, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। ये लाइन, अगर कोई लाइन ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे तो उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइमेट्री। लाइन ऑफ साइमेट्री। और देखो नोटिस करो बच्चों, ये जो लाइन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं, ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली ग्राफ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ रही है। हेलो हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये होगी लाइन ऑफ साइमेट्री। और लाइन ऑफ साइमेट्री की इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन ये वर्टिकल लाइन है ना, तो इसकी इक्वेशन भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसकी इक्वेशन तुम्हें मिलेगी यहां से, ये वाला पार्ट। x+1 ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी, एक ही बात है। x+1 को सेट करना 0 के बराबर, x = -1, ये लाइन ऑफ साइमेट्री है। चेक कर लो ये -1 से हो रही है भाई। आई होप इसकी क्वेश्चन देख पा रहे हो। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा यस चुका सर। हूं आपको। मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुका हूं बच्चों। तो मेरे ख्याल में ये आपको शायद क्लियरली नजर आ रही है कि अगर ये लाइन होगी, जिसको मैं यहाँ प्लॉट कर लेता हूं अब, इसके पास y x y होगा x, सॉरी, x = -1, तो ये आपके पास लाइन ऑफ साइमेट्री है। यानी अगर आप बच्चों इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आपके पास दो चीजें डायरेक्टली मिल जाएंगी। ये आपको देगा लाइन ऑफ साइमेट्री और ये पॉइंट आपको देगा वर्टेक्स। कितने दोस्त मेरे साथ यहां तक बिल्कुल मेरे साथ हैं? कितनों को यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। हेलो यस हेलो। सर। आई डोंट नो अबाउट, सरमत भी मौजूद है, रिकॉर्डिंग देख ले अगर इंटरनेट मसला हो रहा है। पर बेटा ये इतनी काम की चीज है, इससे हम बहुत चीजों को फाइंड आउट करेंगे। मतलब ये हमारी बेसिक बेसिक चीज है, तभी मैंने आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया था कल, जैसे मैं आपको कह रहा था कन्वर्ट करना सिखाया था। अब बच्चों एक और टेक्निकल चीज देख लो, क्योंकि मैं इसी के अंदर आज मेरी पूरी क्लास है, और अगर हमने ये कर लिया तो फिर हम ग्राफिंग की तरफ चले जाएंगे। अब एक और चीज देख लो बच्चों जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। आई होप ये वाली बात समझ आ गई है। इसको हम कहते हैं वर्टेक्स और ये कहलाती है हमारे पास लाइन ऑफ साइमेट्री। ये दो बातें समझ आ गई और आपको कन्वर्ट करना आ गया है। अच्छा बच्चों, मैं आपको अब एक और क्वेश्चन पे लेके जाता हूं, जैसे अब और नेक्स्ट टाइम मैं आपसे कुछ पूछूंगा कि यार अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी, तो होपफुली आप मुझे आंसर दे दोगे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, y = ओके फॉर एग्जाम्पल 4x²। लेट मी गिव अ बेटर एग्जांपल, बिकॉज मैं वो हार्डर क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं कि बस क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो, ज्यादा मुश्किल ना हो। अच्छा, कितने दोस्त इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, a x - b + c की फॉर्म में, इस वाले भाई साहब को? हेलो, कितने दोस्त कर सकते हैं इसको कन्वर्ट? यस सर। हो जाएगा। यस कर सर। सकते हो? हाँ भाई इस्माइल, व्हाट अबाउट सरमत? यस चलो सर। फिर ले लो 2 से 3 मिनट, 5 मिनट, जरा कन्वर्ट करके दिखाओ जल्दी से।
हेलो सर। जी सरमत। सरमत, हम मैंने कहा है कि ये इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। आपने वो सुना था बच्चे? मेरे साथ थे वीडियो पे? नो सर। चलो सरमत, मैं आपको सिखा रहा हूँ, बाकी ये अभी कर रहे बता हैं आप। देते। अभी सीख ले, अभी सीख ले। सरमत, स्टेप नंबर 1। अच्छा, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है सरमत? मुझे इसमें ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। ये वही पिछली फॉर्म है जो पिछली वीडियो में सिखाई थी, खाली बस ए एक्स्ट्रा आ गया है। ए एक्स्ट्रा क्यों आया? क्योंकि अब एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट आ गया है। सरमत, स्टेप नंबर 1 होगा, हमें एक्स स्क्वायर के साथ वन चाहिए, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ और खाली शुरू के 2 में कॉमन लूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा आपके पास 8 का हो जाएगा 2x, और 12 वैसे ही रहेगा। सरमत, यहां तक मेरे साथ हैं? सरमत जल्दी। सर 12, सर 12 को कॉमन नहीं लेंगे क्या? नहीं नहीं, 12 से नहीं लेंगे बेटा हम, ये फॉर्मेशन ही ऐसी है, ये फॉर्मेशन ही ऐसी है, ठीक है। तो हमें इसमें ओके सिर्फ सर। 2 में लेना है, 3 में नहीं लेना। ओके नाउ, 4 सरमत ए स्क्वायर एंड 2, ये हमने कल सीखा था ए। अगर मैं इसको ऊपर कंपेयर करूंगा सरमत, तो बी की वैल्यू 1 बच रही है कल। तो बी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सरमत, यहाँ तक मेरे साथ हैं? हेलो? यस सर। ओके सरमत, अब इसका मतलब यस ये सर। नंबर्स मिल गए हैं जो स्क्वायर में बंद हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसके बाद ये मेरे पास -1। मैंने क्या किया, इन 3 को फार्मूले बंद कर दिया, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपके पास, यानी -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 12 को मैंने वैसे रखा। अब सर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर -4 प्लस 12, क्योंकि 4 सिर्फ दोनों से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस के 8। तो देखो मैंने सरमत इसको कन्वर्ट कर दिया। इस वक्त a की वैल्यू मेरे पास 4 है। अगर सरमत यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको कैसे बना लें? ये भी माइनस दे दें, यानी इसको लिखने का स्टाइल देख लें। अगर प्लस आ रहा है और मुझे इस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ माइनस दे दे और यहाँ माइनस दे दें। ठीक है, एक ही बात होगी ना बच्चे? हेलो? यस सर, प्लस करना है ना सिर्फ, मतलब साइंस प्लस करना है ना? हाँ भाई, वो एक्चुअली प्लस का 1 आ रहा है, पर मुझे इसको इस शक्ल में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, -1 वो वही प्लस हो जाएगा वापस +1, यानी मैंने कोई चेंजिंग नहीं है, पर मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है सरमत, यहाँ तक मेरे साथ हैं? हेलो? यस सर। अब ऐसा मैंने क्यों किया, मैं आपको अभी रीजन दे रहा हूँ उसका। अब नाउ सरमत, ये मैंने इसको ही ये मैंने इसको ही सिंप्लीफाई किया है ना। अब देखो, मैं जो मैंने कन्वर्ट कर लिया है, 4x -1 होल स्क्वायर प्लस 8। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको प्लॉट कर रहा हूँ सरमत, ग्राफिकली, और मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फायदे क्या होते हैं, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें कितने सारे फायदे मिल सकते हैं। ओके, आगा, दुआ एंड इस्माइल, आपने कन्वर्ट कर लिया था ऐसे? हेलो? यस यस सर। सर। तो क्या लिखा था हमने? y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर, कोई मुझे बताएगा अगला क्या था? प्लस के 8x, यस सर। और प्लस प्लस का के 8। 12। 8x प्लस के 12 था ना? जल्दी बोलो। यस सर। ओके नाउ लुक सरमत, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। यस, हम इसको बनाएंगे ग्राफ पेपर में, वो टेक्निक में सिखाऊंगा ग्राफिंग किस तरह की जाती है। पहले जरा हम इसको एनालाइज करना सीख लें। सरमत, ये जो पॉइंट होता है ना, अब मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। ये जो बी और सी पॉइंट होता है ना, बी कॉमा सी, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो वो प्लस का बी लेंगे। ये जो बी और सी होता है, ये पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। नोटिस करो सरमत, हमारा क्या है इस वक्त, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 8। बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 8, और देखो -1 पर 8 प्लॉट हुआ है। सरमत जल्दी, सरमत मेरे साथ हैं? यस सर। तो यस बच्चा, सर। ये मुझे स्पेशल पॉइंट्स इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से मुझे स्पेशल यस पॉइंट्स। सर। ठीक है सरमत, ओके, मैंने आई गॉट इट योर। ओके नाउ ये वर्टेक्स मुझे मिल गया। अब सेकंड सरमत, लाइन ऑफ साइमेट्री। अगर कोई लाइन हो जो ग्राफ को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़े, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइमेट्री। लाइन ऑफ साइमेट्री। यस।
अब बेटा Line लाइन of ऑफ symmetry. साइमेट्री, जी इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ साइमेट्री, और लाइन ऑफ साइमेट्री भी मुझे यहाँ से मिल जाती है इस फॉर्म में। जब मैं कन्वर्ट करूं, मैं क्या करूं, इस वाली चीज जो भी लिखा हुआ है x माइनस माइनस वन, उसको सेट कर लूं 0 के बराबर, यानी x प्लस वन इज इक्वल Sir, टू वो B 0। की वैल्यू होती है लाइन ऑफ सिमेट्री। हाँ, ये b की वैल्यू, हाँ इक्वेशन होती है ना लाइन ऑफ सिमेट्री। शर्मा ये इक्वेशन करके आया ना, वर्टिकल लाइन वाली इक्वेशन, ये x इज इक्वल टू सम नंबर होता है ना शर्मा, ये x इज इक्वल टू सम नंबर होता है ना, हम ये करके आए कोऑर्डिनेट में। यस तो देखो यहाँ से वो फॉर्म डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, x यस सर। x इज इक्वल टू माइनस वन, और नोटिस कर लो ये x इज इक्वल टू माइनस वन ही है, लाइन ऑफ सिमेट्री। हेलो हेलो यस बेटा सर। ये, सो या इस फॉर्म को कन्वर्ट करने से फायदा क्या होता है, हमें डायरेक्टली लाइन ऑफ साइमेट्री भी मिल जाती है। तो इसकी लाइन ऑफ साइमेट्री क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वन, और इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स में बता सकता हूँ आपको माइनस वन कॉमा एट। तो इसका वर्टेक्स है माइनस वन कॉमा एट, और लाइन ऑफ साइमेट्री आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस वन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है, चलो ये फॉर्म तो मैंने बता दिया बच्चे, y इंटरसेप्ट भी फाइंड किया जा सकता है। y इंटरसेप्ट मतलब जहां y से ये ग्राफ टकराएगा, 4x² प्लस 8x प्लस 12, y इंटरसेप्ट के लिए बेटा सिंपल सी बात, तुम्हें x की वैल्यू 0 रखनी होगी। जब तुम x की वैल्यू 0 रख दोगे तो तुम्हें ऑब्वियसली y इंटरसेप्ट मिलेगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 और y पे आपके पास कोई भी एक आंसर आना। तो आप नोटिस कर सकते हो y इंटरसेप्ट किसके बराबर आ रहा है, 12 के। तो बेटा अगर इस फॉर्म में होगा ना, तो y इंटरसेप्ट हमेशा ये होगा, y इंटरसेप्ट क्या होगा, 0,12। और चेक कर लो, आप चेक कर लो ये वाली लाइन कहाँ से y इंटरसेप्ट कर रही है, ये 12 से गुजर रही है, देख लो ये 12 से गुजर रही है भैया, ये देखो 12 को यस काट, सर। यस। सरमत आगा, जल्दी बताओ बेटा जल्दी, यस सर। सरमत, सरमत यस सर। ठीक है। अब इसका मतलब तुमने ये वाली बातें खेल ली, ये वाली बातें तुम्हें जी सरमत कुछ पूछना चाह रहे हो, जल्दी पूछो सरमत। नो सर, बेटा दैट्स ओके अब, सर। अच्छा ये लेक्चर भी है, इसको वापस देख लेना क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल लेक्चर है। अब देखो मैं आपकी ग्राफिंग में आपको हेल्प आउट किस तरह करता हूँ, क्योंकि मैंने तकरीबन सारी वो बातें बता दी हैं जो आपको बड़ा काम आने वाली हैं ग्राफिंग में। चलें जी, अब आपके पीडीएफ में मूव करते हैं। ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये मैंने सारी की सारी बातें आपको मोर जर्नल, मोर डिफिकल्ट एग्जाम्पल में समझाई है। ये इन्होंने बहुत सिंपल बात की थी, पर मैंने मोर जर्नल, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपसे पास पेपर सॉल्व करवाने हैं, तो मैं इंटरेस्टेड था पास पेपर के हिसाब से क्वेश्चन करवाने में। तो ये मैंने सारी की सारी बातें आपको बता दी हैं। ये दो फॉर्म्स अभी आगे जाके कुछ एक और फॉर्म बताऊंगा, पर अभी फिलहाल चले जरा क्वेश्चन से मूव करते हैं बच्चों। अच्छा इसने बता दिए कि इसमें, चलो अगर इसने बता दिए तो वो भी सीख लो, 1 मिनट मुझे चाहिए होगा। चलो बच्चों फिर इसको भी सीख लो, अगर ये बोल ही रहा है तो भाई साहब इसको भी सीख लेते हैं। अच्छा नौ बच्चों, इसका पॉइंट ऑफ व्यू, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख लेते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूं कि मैं उससे करवाऊं या इससे, चलो ऐसे करवाता हूं, एक और एग्जाम्पल करवाता हूं बच्चों। y इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6, क्या ख्याल है इसकी मिल्टन ब्रेकिंग की जा सकती है, जल्दी बताओ इसकी मिल्टन ब्रेकिंग की जा सकती है? यस सर। यस सर। तो यस इसको ऐसे सर। x प्लस 2 और x प्लस 3 लिख दूं, यस सर। यस सर। यस सर। जल्दी बताओ। अब बेटा अगर किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को तुम इस फॉर्म में लिख सको, यानी मिल्टन ब्रेकिंग की फॉर्म में लिख सको, अच्छा जो पिछले मैंने क्वेश्चन दिए थे ना उसमें मिल्टन ब्रेकिंग नहीं हो सकती, तो फिर मजबूरन मुझे खाली उसी फॉर्म में जा सकता था मैं, पर इसमें मिल्टन ब्रेकिंग हो सकती है। मैं चाहूं तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, जिसे मैं अगर चलो एनालाइज करवाऊं तो सारा करवाऊं, मैं जल्दी से कर लेता हूं इसको, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये मेरा a² है और 2, मैं अज्यूम कर रहा हूं मेरे बच्चों ने कल वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से किया हुआ है, तो उनको इसमें बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं होगी। b² ऐड किया और b² सब्ट्रैक्ट भी किया, मैं इसको दो फॉर्म में लिख रहा हूँ प्लस 6 वैसे ही। तो y इज इक्वल, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे पास बच्चे हर चीज को नोटिस करें, इस वाले फॉर्म में भी नोटिस करें, इस वाले फॉर्म में भी नोटिस करें, प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6। सरमत ये वाली फॉर्म समझ आ रही है अगर कल आपने वीडियो देखी है? मैं इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्म में यस लिख रहा हूँ, सर। उम्मीद करता हूँ मेहनत जितनी करोगे, मुझे एक भी बच्चा नहीं चाहिए जिसका स्कोर A+ से कम आए, पर आपने मेरा साथ देना, मैं आपका साथ दूंगा।
मैं आपको बना के दिखाऊंगा, पर शर्त ये कि आप मेरे साथ टिक के काम करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे। ओके, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई एलसीएम, तो 6 पहले लिख लेता हूँ, -25/4 जस्ट फॉर सेक ऑफ इजीनेस, ताकि वो प्लस आपके पास पहले हो। ओके, 5/2 होल स्क्वायर। बेटा जी इसका एलसीएम ले लेता हूँ 4, ये हो जाएगा 24 -25, तो इसकी फाइनली फॉर्म आ रही है आपके पास x प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 5/2 होल स्क्वायर और 1/4 -1/4। सो बच्चों ये देखो, y इज इक्वल टू a x प्लस 5/b, जैसे मैं इसको फॉर्म में कन्वर्ट करता था, सॉरी मुझे टाइम चाहिए थोड़ा सा, यस, माइनस और माइनस के 5/2 होल स्क्वायर और माइनस के 1/4, बेशक चलो प्लस के दो और इसको माइनस के दो एक ही बात है। तो ये मैं इसको फॉर्म में लिख रहा था, हद हो गई, मैं इसको फॉर्म में लिख रहा था, मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, उसकी जनरल फॉर्म लिखनी थी मुझे। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी। तो मुझे कौन बताएगा बी की वैल्यू क्या है इस वक्त, मुझे कौन बताएगा बी की वैल्यू क्या है इस वक्त, जल्दी बेटो। 5/2 सॉरी, 5/2 इट्स नॉट 5/2 सर। 5/2, इट्स माइनस नॉट 5/2। -5/2, बेटा ये ख्याल रखो ना। यस सर तो इस वक्त मेरी बी की वैल्यू है -5/2, और मुझे कौन बताएगा सी की वैल्यू क्या है मेरी, -1/4। -1/4 -1/4। सरमत आगा मेरे साथ हो, यस सर। यानी सिंपल यार, प्लस का हो तो उसको माइनस कर दो बस, सिंपल, क्योंकि फॉर्म में माइनस होती है। अगर ये प्लस का लिखा हो तो माइनस कर दो। ये मेरा वर्टेक्स है, जैसे मैंने आपसे कहा था, ये मेरा वर्टेक्स है। और मैंने लाइन ऑफ साइमेट्री बताई, तो लाइन ऑफ साइमेट्री क्या होगी, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -5/2। आप देख सकोगे -5/2 क्या होता है, माइनस के 2.5 होता है। देखो अब मैं बनाऊंगा, और इससे क्या फायदा होगा इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मैंने एक ही चीज की दो दो फॉर्म इसलिए दिखाई है, क्योंकि मैं आपसे एनालाइज करवाना चाहता हूँ चीजों को। मैं चाहता हूं कि आप अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो आपको पता हो कि आप क्या चीज निकालना चाह रहे हो, और अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करो तो क्या चीज निकालना चाह रहे हो। ओके, मेरा क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स सर x स्क्वायर, -5/2 इज इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ नहीं, x प्लस 5/2 बेटा, जो यहां पर होगा, दुआ जो भी यहां पर होगा बस उसको कर लो 0 के बराबर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में। ठीक है दुआ, दुआ जल्दी बेटा, मेरे पास टाइम यस सर, मुझे। यस सर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x एंड प्लस 6। ओके, अब बच्चों तुम्हारी बारी। सो पहले मैं सरमत से, सरमत जरा देखना, और मुझे इसके वर्टेक्स एक्चुअली -5/2 और -1/4, मैं इस पॉइंट को यहाँ दिखा देता हूँ जियोल जबरा से। ये वर्टेक्स है, ये आई थिंक ये वर्टेक्स होगा, और ये वर्टेक्स, ये जो पॉइंट होगा ए पॉइंट, ये बेसिकली क्या होगा, -5/2 और -1/4, ये पॉइंट होगा। क्योंकि ये थोड़ा सा पॉइंट्स में है, शायद आपको डिफिकल्ट हो सकता है, पर मुझे पता है ये पॉइंट 100% ये होगा। यहां तक मेरे साथ हो दोस्तों, हेलो हेलो, यस यस सर। सर सरमत सरमत जल्दी बेटा, यहां तक मेरे यस सर। साथ हो। ओके, मैं जरा इसको और बड़ा कर दूं ताकि मैं इसको और अच्छी तरीके से दिखा सकूं। ओके बच्चों, जैसे मैंने कहा था यस लाइन सर। ऑफ, यस ओके, जैसे मैंने कहा था लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होनी चाहिए, x इज इक्वल टू -2.5। देखो प्लॉट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस के 2.5, 2.5। देखो लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है, ये लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है इसकी ग्राफ यस की। यस सर। सर यस हेलो, सर। तो लाइन ऑफ साइमेट्री हमने फाइंड कर ली। अब बच्चों मैंने इस फॉर्म की तो सारी बातें आपको बता दी, और y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, 6। देखो y इंटरसेप्ट यही लाइन प्लॉट की है ना मैंने, 6, तो इसका y इंटरसेप्ट 6 क्यों नहीं हो रहा, ये मैंने सर सही 6 लिखा ही है हो ना, रहा है। 6 कहाँ है, अच्छा सॉरी, ये रहा, सर सॉरी 6 सर ही है। 6 ही है सॉरी, एक्चुअली मैं समझा ये मेरा एक्स एक्सेस है। ओके 6 ही है। अब बच्चों मैंने ये क्या बात बताई आपको, ये इसकी थ्योरी तो मैंने आपको पूरी समझा दी, ये मैंने क्यों किया और इससे मुझे क्या फायदा होगा। अब देखो बच्चों, अगर मुझे इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना हो, अगर मुझे इसका क्या फाइंड करना हो, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब y की वैल्यू 0 होना। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, y की वैल्यू 0। यानी बच्चों आप सीख के आए हो ना, अगर ये 0 होगा
और आपको यही तो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाई थी मैंने, याद है बच्चों आपको? हेलो। यस सर। तो Sir. बेसिकली सर जो मैं आपको सिखा रहा था ग्राफिकली, वो मैं आपको एक्स इंटरसेप्ट, इस ग्राफ का एक्स इंटरसेप्ट सिखा रहा था। ओ यार